دیکھتے ہیں انڈیا کی میڈیا تو یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر آئی ڈی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں, پہلے اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دیا جا رہا ہے, ہندو ہے تو مار دیا جا رہا ہے. اگر انڈیا گیتا پڑھنے والا بھی ہے, کلام پاک کا جو ہے ترجمہ پڑھے, وہ اگر وہ نہیں پڑھنا جانتا ہے عربی میں, ترجمہ پڑھے کہ اللہ کیا کہتا ہے. یہ دنیا کے اندر یہ کتاب ایسی دی اللہ پاک نے, پوری دنیا رہتی دنیا کے لیے, اس کا ترجمہ پڑھے, ان کو پتہ چل جائے. الزام لگاتا ہم ان پہ الزام لگاتے جا رہے ہیں, اور اپنے جتنا بھی بجٹ ہے سارا کا سارا لگا رہے ہیں ویپنز خریدنے میں. تو اگر وہی بجٹ ہم اپنے ایجوکیشن میں لگا دیں, اپنے انفراسٹرکچر پہ لگا دیں, تو آج دونوں ملک ڈیولپ نہ ہوتے. انڈیا تو ہو گیا ڈیولپ, ہم بھی ڈیولپ نہیں ہو گئے ہوتے. انڈیا نہیں ہوا, ڈیولپ نہیں ہوا. کس نے کہا سر ان کی $4 ٹریلین کی 4-5 ٹریلین ڈالرز کی ان کی اکانومی ہے. آپ اس کی اکانومی کو چھوڑیں, اس کی پھر اکانومی کل تو باہر ہے دنیا میں. اکانومی کیوں ہے اس کی؟ آپ کو پتہ ہے افراد زر ان کی, لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں, اس کی جو ہے نا پاپولیشن زیادہ ہے, ان کی کام کر رہے ہیں, سمجھے سر. یو کے والے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, یو کے جیسے تو بن ہی نہیں سکتے ہیں وہ. اچھا سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے 4 صوبے ہیں, انڈیا کے 24 صوبے ہیں, اور اس وقت وہ ٹاپ کلاس پہ جا رہے ہیں. ہر چیز وہ اپنی بنا رہے ہیں, یہاں تک کہ سوئی, ہر چیز ان کی اپنی ہے. سب سے امیر ملک وہ ہے کہ ہم مانگنے والے ہوئے. ہاں جی بتائیں, جواب دیں. وہ صحیح کہہ رہے, دل جلا ہوا ہے. تو سر ٹیکنالوجیکل اگر ایڈوانسمنٹ کی بات کریں, چلو ابھی انڈیا میں غربت بھی ہے, آنے والے 10 سال میں وہ ٹھیک بھی کر لیں گے, ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ان کے صوبے الگ ہو جائیں گے. صوبے الگ ہو جائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ 26 صوبے ہیں, 24 نہیں, 26 ہیں, الگ ہو جائیں گے. وہ لگے ہوئے ہیں اپنے, اس کے ان کو مراد نہیں مل رہی ہے, ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. کون کون سے صوبوں کو نہیں مل رہے ہیں؟ اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. اللہ بس انکل کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں. گارمنٹس کا کام کرتے ہیں, امپورٹڈ کا. زبردست. سر آپ سے بات کرنے کا پرپس یہ کہ ابھی ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں جہاں پر کشمیر ہے, ایک طرف ہماری طرف کشمیر ہے, ایک ان کی طرف جو کشمیر ہے, وہاں پر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈر اٹیک ہے. وہاں پر لوگوں کو, ایک پہلگام علاقہ ہے, وہاں پر کیا کیا ہے, چند ایک وہ لوگ بتا رہے کہ ایک دہشت گرد آئے ہیں, اگر 20 لوگوں کو زخمی کر دیا ہے, 2 کی جان بھی چلی گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ تو الزام لگا رہے ہیں ہمارے لشکر طیبہ پر, کیا اس چیز کو آپ کیسے مانتے ہیں, کنڈم کرتے ہیں اس چیز کو؟ بات ایسے ہے کہ کرواتا خود ہندوستان ہے. اچھا, اقوام متحدہ کی اس کو کرنے کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ پاکستان کروا رہا ہے. اور ہندوستان کو چاہیے اس کی عوام کی خاطر کہ اس کو جو ہے اقوام متحدہ کے تحت جو ہے نا ان کا مسئلہ حل کرائے, رائے شماری کرائے. اگر یہ نہیں کرائیں گے, ان کا ہندوستان کا بھی نقصان ہے اور ان کشمیریوں کا بھی نقصان ہے. اس سے بہتر ہے وہ کرا لیں رائے شماری, اس کے بعد اگر جو بھی جس جگہ رہتا ہے وہ بعد میں آپ ان سے بزنس کر سکتے ہیں. آپ ان سے جو ہے نا وہ بھی جو بھی کاروبار کرنا چاہیں, یا اس سے بجلی لینا چاہیں, جو بھی کرنا چاہیں, آپ راضی سے وہ راضی نامے سے کام کروا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس خطے کے اندر امن ہو جائے گا. امن نہیں ہوگا تو دنیا اس ٹائم جو ہے نا معاشی جنگ ہے, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا کر لے. اس وقت ان کو موقع ہے, پوری دنیا جو ہے نا تجارت کے چکر میں, اور ان کو بھی کرنا چاہیے اس کی عوام کے لیے, کیونکہ اپنی عوام پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی عوام ہے, افراط زر ہے ہمارا, باہر سے آتا ہے, ہماری چیزیں بکتی ہیں باہر. وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے صوبے بھی الگ ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. سر جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی کشمیر کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. اگر میں بات کروں پلوامہ کی, تو پلوامہ کے اندر بھی پاکستان کو قصوروار ٹھہرا کر ہمارے حالات خراب ہوئے. تو کشمیر کا مسئلہ ہم کب تک لے کر چلیں گے؟ کشمیر کے معاملات کو لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیر ہمارا, وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا. 2 ملک اس وجہ سے لڑ کے خراب ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, تو کشمیر سچ میں ہے کس کا؟ کشمیری کشمیریوں کا ہے. وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں گے, سمجھے نا. وہ نہ ہمارا ہے نہ ان کا ہوگا. وہ خود رہنا چاہتے ہیں, ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو ان کو دو, رائٹ ہے ان کا. کیونکہ وہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم لیں گے کشمیر, سری نگر وغیرہ, یہ اسی لیے کہ ہم نہیں لے سکتے ہیں کہ جب تک وہ خود نہیں چاہیں. اگر وہ خود علاق ہونا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے, اور نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے. کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے. پہلے رائے شماری کرائیں. اقوام متحدہ میں تو پاور ہے ہی نہیں اس وقت, نہ آپ کا فلسطین میں نہ کشمیر میں.
हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सबके हाथ बंधे हुए हैं. जो डोनेशन दे रहा है उसकी वाह वाह हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर. सर बताया ही जा रहा है कि वहां पर लोग चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा, अगर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, अगर ये हिंदू है तो तब मार रहे हैं कश्मीर के अंदर जो लोग, और मुसलमान है तो छोड़ रहे हैं. तो इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मीडिया तो ये बता रही है कि वहां पर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, पहले अगर मुसलमान है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो मार दिया जा रहा है. ये जालसाजी है. इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं. ना हमने उधर देखा हुआ है, ना मेरे इतने सोर्स हैं और इस इलाके में कि मैं जाके उनको मतलब आपके ख्याल में प्रोपोगंडा है उनकी मीडिया का? मीडिया वैसे भी उसकी मीडिया जो है ना मुखलिस नहीं है. किसी चीज़ के अंदर भी पाकिस्तान से मुखलिस है ही नहीं. अच्छा. अगर वो मुखलिस होती ना पाकिस्तान के साथ तो वो बैठ के कोई ना कोई मसले हल करवाते. वो मीडिया ही मुखलिस नहीं है. और मीडिया जो है मेरे को तो लग रहा है इसराइल की गोद में बैठी हुई है. इंडिया की मीडिया तो इसराइल- हमारी मीडिया माशाल्लाह मोहब्बे वतन है. कुछ मीडिया के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो होंगी भोंगी करते रहते हैं. हमारी मीडिया भी ऐसी है, नो डाउट. अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से हम कश्मीर के पुराने हालात देखते थे, शुरू से देखकर अभी तक आ रहे हैं, तो कश्मीर को इंडिया ने 370 का आर्टिकल भी हटाकर अपना बना लिया था. अब उन्होंने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया, दुनिया को बता दिया कि कश्मीर अब प्रॉपर इंडिया का पार्ट है, जो इंडिया साइड कश्मीर है. तो तब भी हम क्या कर पाए? अभी हम क्या करेंगे उसके बारे से? बात हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है. तो किसके क्योंकि बस में? हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो उसने बंगाल के लिए किया था. हिंदुस्तान ने जो बंगाल के लिए किया था वो हम काम नहीं कर सकते. हम अक़वाम मुत्तहिदा का एहतराम करते हैं. हम अमन पसंद लोग हैं और अमन से रहना चाहते हैं इस खित्ते के अंदर. हम नहीं चाहते हैं जो वो काम करे कि इंसानियत का हम कत्ल करें. हमारे अंदर आदत नहीं है. हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही हैं. हम मुसलमान हैं. अगर इंडिया गीता पढ़ने वाला भी है, कलाम पाक का जो है तर्जुमा पढ़े, वो अगर वो नहीं पढ़ना जानता है अरबी में, तर्जुमा पढ़े कि अल्लाह क्या कहता है. ये दुनिया के अंदर ये किताब ऐसी दी अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया रहती दुनिया के लिए. उसका तर्जुमा पढ़े, इनको पता चल जाएगा कि है अल्लाह क्या कहता है, उसके मुताबिक वो अमल करें. बिल्कुल तो साइंस ने भी जब अमल किया है तो तरक्की की है उसने दुनिया के अंदर. वो कलाम पाक से लिया है. सर हम अगर बात करें मुसलमान ममालिकों की, मुसलमान ममालिक भी इंडिया की हिमायत करते हैं कश्मीर को लेकर. तो अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया को हम कहते हैं कि भाई ये बताओ दुनिया को कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, वो सऊदी अरेबिया कहता है कि नहीं भाई कश्मीर आपका पार्ट नहीं है. मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ देने के खड़े नहीं है. अगर उनको नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर के अंदर, तो हम तो चीखते हैं कि चिल्लाते हैं कश्मीर के अंदर जुल्म होता, उनको नजर नहीं आ रहा दुनिया को कश्मीर के अंदर जुल्म होता, कोई क्यों नहीं बोलता इस हवाले से? बात यह है कि वो इस वक्त जो है ना माशी कारोबार है सबका इस्लामी उम्मा से, उनसे चीज़ें लेते हैं ना. किनसे? इंडिया से? इंडिया से मादनियात में काफ़ी लोग मुसलमान जो है ना लेते हैं मुल्क. अच्छा. हाँ, उसकी वजह से वो भी नहीं बोलते हैं, हालांकि उनको बोलना चाहिए इस्लाम के नाते उनको. सर आपको लगता है कि अभी मौजूदा टाइम के अंदर लोग इस्लाम को लेकर चल रहे हैं या फिर अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं? आप देखेंगे जितने भी इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया खुद अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है और उनको 21 तोपों की सलामी देकर उनको इस्तकबाल किया गया. और मैं बताऊं उनका इस्तकबाल कैसे किया गया. जब इंडिया के जो त्यारा, नरेंद्र मोदी का जो त्यारा एयरबेस में दाखिल हुआ सऊदी अरेबिया के, तो उनके सऊदी अरेबिया के जो फाइटर जेट है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया नरेंद्र मोदी का. इस तरह तो इस्तकबाल हो रहा. आप क्या समझते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान उम्मा इंडिया के मुसलमानों को सहूलत भी दी उन्होंने, हमारे हाजियों के और उनके हाजियों में सहूलत भी दी है. ये उनको सोचना चाहिए और हमारे में पावर होना चाहिए इस्लामी उम्मा के अंदर. क्यों हम एक ऐसे खित्ते के अंदर रहते हैं जो पूरी दुनिया को पता है कि अगर हमारे मुल्क में अमन होगा पूरी दुनिया में अमन होगा. क्योंकि हमारा खित्ता जो है ना बहुत प्यारा है. आप बॉर्डरों की तरफ देखें, समुद्रों की तरफ देखें, खुद हैरान हो जाओगे अल्लाह पाक ने कैसी दी है. सर वो बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन कश्मीर के अंदर ये मसाइल जो कभी हमारी साइड वाले कश्मीर में होता, कभी उनके साइड वाले कश्मीर में, और वो हम पर इल्ज़ाम लगाता, हम उन पर इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं. और अपने जितना भी बजट है सारा का सारा लगा रहे हैं वेपन्स खरीदने में. तो अगर वही बजट हम अपने एजुकेशन में लगा दें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दें, तो आज दोनों मुल्क डेवलप ना होते. इंडिया तो हो गया डेवलप, हम भी डेवलप नहीं हो गए होते. इंडिया नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ. किसने कहा? सर उनकी $4 ट्रिलियन की 4-5 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी है. आप उसकी इकोनॉमी को छोड़ें, उसकी फिर इकोनॉमी कल तो बाहर है दुनिया में. इकोनॉमी क्यों है उसकी? आपको पता है अफरात ज़र उनकी, लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं और जो है ना
पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी, ठीक है। उनकी मादनी चीज़ें बाहर जाती हैं उनकी, ठीक है, इंडिया की, ठीक है। और इंडिया की जो ईद बारात और दूसरे त्यौहार वगैरह होते हैं, इंडिया के अंदर भी कारोबार उनका जो है अच्छा है। तो आप फिर इसके बावजूद भी आप देख लें, पाकिस्तानी किसी गांव से किसी शहर से बच्चा देख लें, उनका चेहरा शाश बशाश देखें और उनका देखें, उनके घरों में अभी खुशहाली नहीं है। सर हमारी 40% से ज़्यादा पॉवर्टी रेट हो गया, 40% जो लोग हैं वो पॉवर्टी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। अब भी आप यही बात कर रहे हैं, हम इसी गुमान में ही रह जाएंगे कि अब हम बड़े अमीर हैं, हमारी इकोनॉमी, हम हमारे बच्चे हाश बाश हैं, और इसी चक्कर में तो हमारी इकोनॉमी का देखिए क्या हालात हो गए हैं। आप गलत फहमी में हैं, आप हैं गलत फहमी में। सही है सर। आप ये मुझे पता है कि इधर जो है ना, इसी बाजार के अंदर कितने लोगों के हाथ में मोबाइल मिलेंगे, कितने लोगों के हाथ में गाड़ी मिलेगी, क्या इंडिया में सबके पास है क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। उनके टॉयलेट उधर बाहर बने हुए घरों के अंदर नहीं है इंडिया के। आप जाके देखें इंडिया के। आप गए में? हम पूरा सब कुछ इसके सारे सूबे देखे हम। कब गए थे? हम हर वक्त जाते रहते हैं, हमारा कोई पता नहीं होता हम कब चले जाएं। अच्छा, हाँ, मतलब आप इशारे पे होते हैं जब मर्जी हम चले जाएं। जब चले जाएं उधर हमारे लोग भी हैं इंडिया के अंदर। तो वो क्या बताते हैं, वहाँ पे गुर्बत है? बहुत गुर्बत है वहाँ, आपकी सोच है वो। अच्छा। अगर जो अच्छे नज़र आते हैं, वहाँ टैक्स का निज़ाम अच्छा है, हमारा निज़ाम टैक्स का सही नहीं है। बिल्कुल सही। समझे ना, जो हमारा टैक्स का निज़ाम हो जाए और कौम मुखलिस हो जाए हमारी, तो फिर अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अंकल बता रहे हैं कि हमसे ज्यादा गुर्बत इंडिया में, और इंडिया के हालात बड़े खराब है। अगर मैं दुनिया की रिसर्च करूँ, गूगल पर हम रिसर्च करते हैं, तो इंडिया की $4 ट्रिलियन की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनती है, यूके को भी बीट कर दिया। तो क्या हमसे ज्यादा गरीब है वो? हाँ जी, अंकल की बात जो है ना ये बिल्कुल राइट है। अंकल अपने राइट जगह पे बिल्कुल सही बोले, क्योंकि आप दुनिया में जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गुर्बत में जो है ना इंडिया ही आते हैं, क्योंकि अच्छा। टॉप लिस्ट में जो है ना इंडिया गुर्बत में जो है ना टॉप पे आ रहा है आजकल। तो अगर इकोनॉमी की देखिए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी दुनिया में मैटर करती है ना, यूके को भी बीट करके इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, तो कैसे बना? वो जाहिर बात है, इंडिया जो है ना वो आता हूँ। उसका जो अवाम है वो ज्यादातर जो है ना गरीब लोग है, और जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट उसका अमीर है। अगर गवर्नमेंट जो है ना वो अवामों के साथ दे सके, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है ना उसका किस्मत भी बदल सकते हैं, उनका लक भी बदल सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं अंकल? आप यूके की बात कर रहे हो, उससे मिला रहे हो। यूके के लोग खुद जो है ना हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूके की पॉपुलेशन देखें और इंडिया की पॉपुलेशन देखें, इससे क्या होता है? इससे बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ये तो बताएं, पॉपुलेशन से क्या उसकी फर्क पड़ता है? पॉपुलेशन जो है ना कम है यूके की, इसकी ज़्यादा है। अच्छा, इसकी इकोनॉमी इसीलिए सही हो गई है कि वो बाहर से पैसे कमा रहे हैं, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान, हाँ जी। और वो जो है ना अपने रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। समझे सर, यूके वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूके जैसे तो बन ही नहीं सकते हैं वो। अच्छा सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना रुके चाह रहा हमारे 4 सूबे हैं, हाँ। इंडिया के 24 सूबे हैं, 24 सूबे। और इस वक्त वो टॉप क्लास पे जा रहे हैं। टॉप क्लास। हर चीज वो अपनी बना रहे हैं, यहाँ तक कि सुई, हर चीज उनकी अपनी है। सबसे अमीर मुल्क वो है कि हम मांगने वाले हुए। हाँ जी, बताएं, जवाब दे। वो सही कह रहे, दिल जला हुआ है, दिल जला हुआ उनका। बाबा दिल जला हुआ है। असल में वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन जो जहाँ तक मैंने बात बताई, क्योंकि उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अमीर है और जो अवाम है वो जो है ना वो गरीब है। तो बात यहाँ पर आती है, क्योंकि अगर कारोबारी लिहाज से हम चेक करें ना तो इंडिया आगे जा रहा है, क्योंकि हमारा 4 सूबे है, ठीक है, वो जो है ना 24 सूबे है, लेकिन वो कारोबारी के लिहाज से पाकिस्तान से जो है ना वो बहुत आगे जा रहा है। तो गुर्बत कहाँ से होगी फिर, कारोबारी लिहाज से हो गया? सर जी, गुर्बत यहाँ पर आ रहे हैं ताकि उसका जो जितने भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं ना उसका गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है, ताकि ये नहीं है कि वो लोग उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल है, जब गवर्नमेंट कहीं पे प्रोजेक्ट लगाती है, फॉर एग्जांपल का यहाँ पर एप्पल कंपनी का प्रोजेक्ट लगता है इधर, तो जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उसको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो जाएगा। हमारे यहाँ पर आप कोई कंपनी का नाम बता दें जो टॉप क्लास की कंपनी इधर इन्वेस्टमेंट करती हो। मैं इंडिया के फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कि 10 कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। आप बता सकते हैं कोई 10 कंपनी? बिल्कुल, ना खैर उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन सबसे टॉप पे जो है ना उसका जा रहे हैं, वो टाटा जा रहे हैं। टाटा कंपनी जो है ना उसका टॉप पे जा रहा है, महिंद्रा जा रही है, वहाँ पर BMW आ गया, मर्सिडीज आ गई, जगवार आ गई, ऑडी आ गया। कौन सी कंपनी है जो नहीं है? एप्पल कंपनी का हमारे यहाँ पर कोई भी यूट्यूब का कोई आउटलेट मौजूद नहीं है, कोई दफ्तर नहीं मौजूद, कोई गूगल का कोई दफ्तर नहीं मौजूद। अगर मेरे चैनल बंद हो जाता तो मैं कहाँ जाऊँगा? अमेरिका जाऊँगा। इंडिया के अंदर दफ्तर मौजूद है और लाखों लोगों को नौकरी देते हैं वहाँ पे। तो सर, टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट की बात करें, चलो अभी इंडिया में गुर्बत भी है, आने वाले 10 साल में वो ठीक भी कर लेंगे, हम क्या करेंगे? उससे पहले उनके सूबे अलग हो जाएंगे। सूबे अलग हो जाएंगे।
आपका क्या ख्याल है? 26 सूबे हैं, 24 नहीं है, 26 हैं, हाँ। अलग हो जाएंगे। अच्छा। वो लगे हुए हैं अपने उसके, उनको मुराद नहीं मिल रही है, उनके हकूक नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से सूबों को नहीं मिल रहे अब हैं? इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ अल्लाह। बस अंकल को पता चल गया कि उसके बारे में अब हम ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है आजकल के हालात भी ऐसे हुए, तो जितना हम खामोश रहे तो बेहतर है। आज अच्छा। जो भी बंदा जो है ना अपने हक के लिए बोलते हैं, आवाज उठाता है, तो उसको जो है ना फिर बिल्कुल जेल की सलाहें जो है ना देखना पड़ता है। जिस तरह हमारे एक वो पड़ा हुआ है आजकल, तो उसकी वजह से बस क्या कह सकते हैं। बिल्कुल अब सही बात हो गया, पे। बिल्कुल सही हो गया। हम बात कर रहे थे बेसिकली कश्मीर के अंदर, जो हमारे इंडिया साइड जो कश्मीर है, इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहां पर दहशतगर्दों ने उनके मुताबिक हमला किया और जो आईडी कार्ड देकर जो भी हिंदू था उसको मारा, मुसलमान को छोड़ दिया। अभी रिसेंट की न्यूज है, उधर चल रहा है ये निजाम, ये हो रहा है। तो वो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे लश्कर तैयबा के ऊपर कि उन्होंने ये अटैक करवाया है। तो इंडिया क्या वालों ने। इंडिया वाले कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा ने ये करवाया, तो क्या समझते हैं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, हमारे लोगों ने करवाया या फिर इल्जाम लगा रहे हैं वो? नहीं यार, अगर मैं सोचूं तो ये बिल्कुल उनका जो है ना ये गलत बात है। ठीक है, हमारी तरफ से जो है ना ये इस तरह कोई सीन नहीं है, ना जो है ना उन्होंने ये हमला वगैरह जो है ना किया हुआ है। वैसे जो है ना नज़र इंडिया वाले के नज़र में जो है ना हम पाकिस्तानी सारे आतंकवादी है, वो हमें जो है ना आतंकवादी कहते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि 5 फिंगर इज़ नॉट सेम। ठीक है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे। इंडिया वाले भी जो है ना अवाम बहुत अच्छे, पाकिस्तानियों के साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो इनके दिलों में जो है ना ये ख्वाब बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी हर मोमिन मुसलमान जो है ना वो आतंकवादी है, वो ये वो है, ये उनके जो है ना गलत फहमी है। और बाकी जो है ना इंडिया और पाकिस्तान जो है ना हम चाहते हैं कि बिल्कुल भाइयों वाला सलूकी जैसे करे, और ये पॉलिटिक्स की बातें जो है ना आपस में से निकाल जाए तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? तलाल कियानी। सॉरी, तलाल कियानी मेरा नाम। भाईजान से पहले भी हमारी बात हुई है, बहुत सारे गिले शिकवे लेकर मेरे पास आए हैं, तो इनकी बातें भी सुनूंगा। जो बेसिक आज का टॉपिक है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर है, एक कश्मीर हमारी साइड पर है, एक उनके साइड पर है। वहाँ पर क्या हुआ आज दहशतगर्दों ने, उनके मुताबिक कि दहशतगर्द वहाँ पर आए हैं, आकर 20 लोगों को जख्मी कर दिया और उन लोगों को मारा जिनके आईडी कार्ड हिंदू आईडी कार्ड पर, मुसलमानों को नहीं मारा। जम्मू में। तो इसके बारे में पहले तो बताएं, उसके बाद जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे मैं खुले दिल से सुनूंगा। अच्छा, देखिए जी, बात इस तरह से है कि ये चीज़ें तब ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं जब एक्सट्रीमिज्म पॉइंट जो है ना जी, वो आम लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, थ्रू सोर्स ऑफ मीडिया भी हो सकता है। ठीक है, आपने पास्ट में देखा 1971 में क्या होता है कि जी बांग्लादेश आज का जो है, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया हिंदू क्लास की तरफ से और उनको तरबियत दी गई कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उनकी तरफ से आपको कोई हक नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आपका ये फ़र्ज़, आपके ये हकूक़ हैं, उनका माइंड वॉश किया गया और उनको इस तरह तरबियत दी गई कि एक एक्सट्रीमिज़म जो क्लास है वो आपको नज़र आती है, वहाँ पे डेवलप होती भी। और ग्रेजुअली आप 1971 16 दिसंबर देखते हैं जब मुजीबुर रहमान जो है वो झंडा लेके अपनी छत के ऊपर चढ़ता है और कहता है कि जी जय बंगाल। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सट्रीज़म पॉइंट है, आप पहले उन चीज़ों पे खुले ज़ाविये के साथ सोचें, देखें। और मेरा आपसे स्पेशली ये एक आप समझ लें कि एक नैरेटिव पॉइंट था कि एक अच्छा माइक या स्पीकर साथ रखने से आप अच्छे जो हैं वो स्पीकर नहीं बन सकते। ज़ाविये का और चीज़ों का एनालिसिस बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और एनालिसिस के बाद आप उस चीज़ को इंटरप्रेट करें तो मैं समझता हूँ ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। जी, ज़बरदस्त हो गया, मैं इस चीज़ पर ज़रूर गौर करूँगा। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी ऑडियंस भी देख रही है, मैं उसका बहुत अच्छे से जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर, आपसे मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, आपने मेरे से पूछा था कि जो हिंदुस्तान है, हमारे भाई हैं, सिर्फ एक बॉर्डर का ही फ़र्क है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही। वहाँ पे भी मुसलमान भाई, हिंदू भाई मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। और मैं उनके साथ बहुत एक हम्बल जो है वो एक क्रिटिक रखता हूँ। जी, बिल्कुल तो आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे से सवाल किया था कि जो हिंदू हैं या जो हमारे इंडियंस हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए या नहीं। हाँ, बिल्कुल पूछा था मैंने। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है तो आप उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को सुने और कोशिश करें कि उनसे अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करें। एग्जैक्टली। लेकिन आपका जो अपना खिता है, जो आपका अपना पंजाब है, जो सिंध है, बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है, आपने कभी मतलब उनको एनालिसिस करने की कोशिश की कि वहाँ पे क्या अच्छा किया जा रहा है? Exactly. आपने कभी कोशिश की कि अपने कैमरे या अपने माइक के थ्रू आप उन चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस करके उन चीज़ों को दिखा सकें जो पाकिस्तान में की जा रही हैं, इंस्टेड ऑफ के जो आपके जो मेजॉरिटी देखने वाले लोग जो हिंदुस्तानी हैं, आप उनको मतलब एक डाइल्यूट पेश करें। खुश करने के लिए ये कहना चाहिए। तो
पंजाब को देखते हैं तो भगत सिंह का नाम सुनते हैं। भगत सिंह का भगत नाम। सिंह कौन है? हमारे मेरे हीरो- मैं उनको अपना हीरो समझता हूँ। हीरो समझते हैं, बिल्कुल सही ठीक बात है, है। अब तो- यहाँ पर आपने बात की, मैं भी दे दूं जवाब, क्या आपका कंप्लीट हो गया? आपने कहा कि पंजाब के रिलेटेड जो खिस्से हैं, ना जो सिर्फ पंजाब, जो ना पाकिस्तान सिर्फ के- पंजाब, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन है? अब्दुल सलाम, बिल्कुल अब्दुल सही। सत्तार कौन है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, हो उसके गया? बाद डॉक्टर रेक्यू खान कौन है? मैं अगर आंसर देना चाहेंगे तो मैंने बलूचिस्तान के ऊपर भी काफ़ी वीडियोस की है, मैंने पंजाब के इश्यूज जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी वीडियोस की है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो भाई मेरे चैनल पर आप जाकर दोबारा से विजिट कीजिएगा, वो सारे व्यूज़, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जहाँ पर मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत है। तो अब आप कहेंगे कि बेसिक जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़, कि यहाँ पर नाली डल गई, यहाँ पर ये क्या, पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया, पंजाब उसने वो किया, मेरा मकसद नाली गटर दिखाना नहीं है। मेरा जी। मकसद आपको बताने का ये है कि आप अच्छी चीज़ों को दिखाएं और अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रे करें, जी, जी। इंस्टेड ऑफ आपके जो एक मेजॉरिटी क्लास जो आपको देखने वाली है, आप सिर्फ उनके रेलेवेंट जो है चीज़ों को इम्बोज करें या इंटरप्रेट करें। आप खुले जाविये के साथ जो चीज़ आपको यहाँ अच्छी नज़र आ रही है मेरा आप वो बताएं। बेसिक और इस जो चैनल का पर्पस ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान जो सिमिलर चीज़ें हैं, जो हमारे बीच में जो नफरतें हैं, उसको मैं कम करने की जितनी मैं कोशिश करूं उतनी मैं करता हूं। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपका लिया, अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम दोनों को नज़दीक लेके आ सके, मेरी एक कोशिश ही, काविश ही है। अगर ये पूरी ना हो सके तो वो अलग बात है, मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरे करने से, अगर उनके दिल में, यहाँ पर पाकिस्तानी बंदा, जिस तरह साहब ने बड़ी प्यारी बातें की, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो भाई पे क्या कर हिंदुओं को बुलाते हैं, भाई क्या कर क्रिश्चियंस को बुलाते हैं। मैं तो सर पंजाबी हाँ, मैं तो चढ़दा ते लैंदा पंजाब इकट्ठा वेख्या, ठीक है। मैं किसी सरहद ਨੂੰ नहीं ਮੰਨਦਾ, ठीक है, लेकिन ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, मैं जरूर इस चीज ਦੀ डिफेंस करांगा, मैं जरूर इस चीज को इंटरप्रेट करांगा। बिल्कुल नुकसान आपने बात की, तो नुकसान किस हवाले से, किस चीज के बारे में कहना चाहेंगे? तर्स किसी भी चीज के हवाले से ना लो, ठीक है, उस चीज को डिफेंड करना वो मैं समझता हूँ मेरा फर्ज है बतौर बड़ी प्यारी बात पाकिस्तानी। की आपने, बहुत प्यारी बात की। भाई को कंसीडर कीजिएगा, दोबारा लेकर आऊंगा शो के ऊपर। अगर आपने कमेंट्स की यहाँ पर कि भाई को दोबारा लेके जाए, भाई की सोच आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने। थैंक यू सो मच ब्रो, वेरी नाइस टॉपिक।